Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. इको सब दे रखी है, इको वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू to weekly Srimad Bhagavatam class. So today we will begin with the chapter number 2. So in the first chapter we discussed 6 questions of the sages of the Naimisharanya, right? So do you remember the 6 questions? Yes. Which are? Yeah, absolute good. Okay. Very well intended. Okay. Essence of all the scriptures. Okay. Why did God appear in the womb of Devaki? And describe the adventures of the Purusha. Describe the? Adventure or whatever the Leelas. Okay. Purusha Avtaras and Leela Avtaras. And then where did he leave Bhagwan when he departed? Where did he leave himself? Where did he leave Dharma? No, himself, but the poet Bhagwan. Where you will find God. Where you will find God when he is born. So the first chapter was questions by the sages, Muni Yogi Jigyasa. Second chapter, I think I have given the breakup in the group, breakup of the chapter. Second chapter begins with the inquiry of, with Vyasdeva. Chapter 2 is entitled Divyata Tatha Divya Seva, Divine and Devotional Service. So in this chapter, Sutta Goswami will start giving answers to the questions of sages of Naimisharanya. So verse number 1, Vyasa Uvacha Iti samprashna santrishya viprana roma harshani pratikujya vachas tesham pravuktam upachakrame. रोमा हर्षण के पुत्र उग्रशवा यानी कि सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे. So it is connecting to chapter number 1. Questions पूछे गए थे, अब उन प्रश्नों का उत्तर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. अब उनके उत्तर यहाँ पे दिए जाएंगे. Is it better? Yeah, is a little different sound coming. Yeah. This is better, right? Yeah. Yeah, this is more clear. There is some humming, inside. Yeah, this is the speaker. I have changed the speaker actually. The speaker is under repair. The regular speaker. Hare Krishna. Hare Krishna. Sound is very important. Everything begins with the sound. So then here he starts narrating the answers. Prabhupada writes in the purport, नैमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और वे अब एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं. Not that all the 6 questions will be answered here, but actually throughout the Bhagavatam, these 6 questions will be answered, and
दिस 6 क्वेश्चंस, ये 6 प्रश्न भागवत के पिलर है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कई बार। पिलर यानी कि खंबे, किसी भी बिल्डिंग का बिल्डिंग बनाने है तो उसके बेस में बेस रहता है और उसके खंबे रहते हैं, राइट। तो ये 6 पिलर है उसके, राइट। भगवान स्वयं बेस है और ये पिलर उनको सहायता करेंगे भगवान को जानने में, प्रश्न पूछने में, राइट। तो ये बिगिंस, व्यासदेव कहते हैं सबसे पहले कि इस तरह से प्रश्न पूछे गए। इट बिगिंस विद द क्वेश्चंस। और इस चैप्टर में आप देखेंगे अ वेरी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ सुखदेव गोस्वामी विल अपीयर, एक अलग ही डिस्क्रिप्शन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, भागवतम बिगिंस विद द क्वेश्चंस। ग्रंथ कोई भी है बेसिकली प्रश्न उत्तर ही है, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो या कोई भी, क्योंकि संसार में क्या चल रहा है, केवल प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं, बराबर ना। सुबह से लेकर शाम तक क्या चलता है, क्या चलता है, प्रश्न उत्तर चलते हैं ना। अभी आपने प्रश्न पूछा होगा घर पे सुबह सुबह, आज शाम को क्या सब्जी बनेगी पूछा होगा ना। एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स आंसर, इधर यू आर एक्साइटेड और हरि बोल तो अगर आपका फेवरेट सब्जी बनेगा तो यू आर एक्साइटेड, मीडियम सब्जी रहेगा ग्रेड का तो यू आर न्यूट्रल, अगर बिल्कुल पसंद का नहीं है तो फिर जो भी आनंद है 1 घंटे में ले लीजिए, बाकी आनंद नहीं है, राइट। सही। अब जाएंगे अगर भागवत के सेकंड कैंटो में, वहाँ भी सुखदेव गोस्वामी खुद कहेंगे, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। जो लोग इस संसार में केवल शरीर का भरण पोषण करने के लिए निर्वाह कर रहे हैं, उनके हजारों प्रश्न रहते हैं, सहस्त्राणी। ये तो मैंने खाली एक प्रश्न पूछा आपसे, ऐसे कई प्रश्न हैं सुबह से लेकर रात तक, है ना। बाहर जब निकलेंगे तो ट्रेन वाले लोग पूछते हैं ट्रेन कब आएगी, बस कब आएगी, ऑफिस का, है ना, अगर पहले ही बॉस पहुंच गए और क्लीन नहीं हुआ है तो पूछता है वो प्यून कब आएगा, जब तक टेबल साफ नहीं हो मैं बैठ नहीं सकता, बराबर है। घर में आपके अगर एक दिन काम वाली बाई नहीं आई तो आपको पता है प्रश्नों की छड़ी लग जाती है फ़ोन पे, कहाँ है, किधर है, क्यों नहीं आई, क्या हुआ। अभी प्रश्न चल रहा है बारिश कब आएगी गर्म हो रहा है ना। और क्वेश्चन आंसर इज गोइंग ऑन नॉट ओनली इन द ह्यूमन सोसाइटी बट इन द एनिमल सोसाइटी ऑल्सो। जो पंछी आवाज़ करते हैं ना सुबह शाम, ये क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हो एक दूसरे से, प्रश्न पूछते रहते हैं। हमें तो लगता है कि वाह क्या मधुर आवाज़ है, क्या पता झगड़े भी चलते होंगे प्रश्न भी पूछते होंगे। इस तरह से सारा संसार प्रश्नों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे व्यासदेव कहते हैं कि सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के उन प्रश्नों से प्रसन्न हो गए जिनमें भगवान का लीला भी प्रकट होने वाला है। क्योंकि प्रश्न का भी क्वालिटी होता है, कोई भी आलतू फालतू उटपटांग प्रश्न पूछ के तो बहुत सारे आंसर दिए जा सकते हैं और टाइम इस तरह से बर्बाद किया जा सकता है, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ दैट। इसलिए यहाँ पे कहते हैं वो इति संप्रश्न संभृष्ट, पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर। सुत गोस्वामी क्या हो गए, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। इसलिए आपने देखा होगा इस्कॉन का बुक है, उसका नाम ही है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। देखा है आपने कभी? या स्मॉल बुक, PQPA, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, या स्मॉल बुक, वेरी नाइस। बिकॉज संसार में लोग परफेक्ट क्वेश्चन पूछना नहीं जानते, इसलिए परफेक्ट आंसर भी नहीं मिलता है।
लोग कोई प्रश्न पूछते ही नहीं परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि दोज क्वेश्चंस which actually will benefit us, those which actually inquire into the well-being of every human being, right? अब घर में अगर प्रश्न पूछा जाए सब्जी कौन सी बनेगी तो केवल घर परिवार के लिए, right? Not for the whole town. But if you ask for the question कि आज सत्संग का टॉपिक क्या है, तो then it is for सत्संग. Then everyone is benefiting. आज कौन सा लीला होने वाला है? So it is for the pleasure of Lord and every one of us. इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसन्न हूँ मैं, right? इस तरह से ये जो क्वेरीज हैं, unless ये क्वेरीज हमारे परफेक्ट नहीं रहेंगे, we will not attain perfection in the life. इसलिए अगर हमें प्रश्न पूछने हैं तो शास्त्रों से पढ़ के समझना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछने हैं। जिंदगी में प्रश्न भी क्या पूछने वो भी मालूम नहीं है हमको, आंसर तो भूल ही जाओ, है ना? भगवद गीता ऑल्सो बिगिंस विद द क्वेश्चंस। 8 साल हमने क्वेश्चन के आंसर लिए, क्वेश्चन आंसर बैक एंड फोर्थ। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन। इसलिए प्रभुपाद कई जगह पे कहते हैं व्यक्ति जब तक अपना मुंह नहीं खोलता है तब तक पता नहीं चलता है कि वो मूर्ख है कि बुद्धिमान है। As soon as he opens his mouth, and more than that, when you start living with that person, you will explore more. तो लेवल 1 है, वे भी अच्छा बोलेगा, बट साथ में रहने के बाद पता चलेगा कि बोलने जो बोलता है उसके ऊपर अमल करता है क्या, राइट? So these are the sages of the Naimisharanya who are teaching us जिंदगी में क्या प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे सबको लाभ हो और हमें भी लाभ हो। विचार कीजिए, प्रश्न से ही संतुष्ट हो गए। सुत गोस्वामी इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल दिस सेजेस। गुरु प्रश्न से ही प्रसन्न हो गए हैं, तो कितना आशीर्वाद दिया होगा उन्होंने, राइट? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न। नाउ व्हेन सुत गोस्वामी स्टार्ट्स आंसरिंग, प्रश्न का जब उत्तर देना चालू करते हैं, यहाँ से ये खास करके जो पहले 8 श्लोक हैं इस चैप्टर के, ये 8 श्लोक में ही आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट इज श्रीमद् भागवतम? भागवत इतना महान क्यों है? हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं चारों संप्रदाय के, इन्होंने भागवत को चुना अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए, राइट? पुष्टि मार्ग में भागवतम भी पढ़ते हैं ना, ब्रह्म संप्रदाय में भागवतम पढ़ते हैं, गौड़ीय श्री संप्रदाय में भागवतम है, उनका भी श्री भाष्य करके भागवतम के ऊपर कमेंट्री है। मध्व संप्रदाय में भी भागवतम है, महाभारत है। वाई? क्योंकि भागवतम ऐसा स्पेशल चीज है, इट्स कॉल्ड परमहंस संहिता, एंड इट इज स्पेशली मेंट टू मेक यू लवर ऑफ गॉड। भगवान का प्रेमी बनाने के लिए बनाया गया शास्त्र है। बाकी शास्त्र हो सकते हैं कि आपको थोड़ा सा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी बताते हैं, लेकिन भागवतम हमें केवल प्योर लव ऑफ गॉड बताता है, विदाउट एनी अडल्टरेशन। दैट्स व्हाई बिगिनिंग में हमने देखा था धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मस्तरणम सताम, राइट? तो दैट्स व्हाई इन द सेकंड वर्स ये कहते हैं सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की शॉर्ट बायोग्राफी दे रहे हैं। एक कैमरा घुमाएंगे, यू नो, कहाँ पर, तो आप अगर आपको ट्रांसलेशन देखेंगे, यू नो, इट्स वेरी नाइस वर्स। यम प्रवजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी। ये बायोग्राफी है शॉर्ट एक वर्स में सुखदेव गोस्वामी की, और ये सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन है, जैसे वेरी यूनिक ग्लोरिफिकेशन। ऐसा कभी ग्लोरिफिकेशन कभी आपने सुना नहीं होगा। जनरली आप कभी ये किसी का अगर ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, यू वांट टू ग्लोरीफाई एनी पर्सन बिफोर अ डिस्कोर्स और अ लेक्चर स्टार्ट्स, देन यू से दिस पर्सन इज so much educated, he has done so much service and he is so much renounced and this and that, आप सब कुछ बताते, राइट? बट अपेरेंटली जब आप ये पढ़ेंगे यहाँ पे,
तो लगेगा सुखदेव गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे हैं कि ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। यू सी द ट्रांसलेशन, ही सेज, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। इज एज पावरफुल एज लॉर्ड कृष्णा, जस्ट लाइक लॉर्ड कृष्णा कैन सी विद इन योर हार्ट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स यू आर थिंकिंग राइट नाउ, विच सब्जी टू मेक इन द इवनिंग। जानते हैं, वो हृदय में बैठे हुए हैं। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी के अंदर भी पावर है। कहाँ गया सुषमा? इज देयर, शुका, हियर हियर। यस, so he has the capacity, right? मैं उनको प्रणाम करता हूँ, कह रहे हो। और देखिए, जब यज्ञोपवीत संस्कार यानी कि उपनयन संस्कार बोलते हैं, हम जानते हैं, सेक्रेट थ्रेड, जनेऊ का बच्चे को देते हैं, देते थे, अभी पता नहीं देते कि नहीं देते हैं, देते हैं। बिफोर वेडिंग क्यों? Because he cannot marry. कि अभी पावरफुल होना है लड़ाई करने के लिए। Only going to निभाव that we give it to them. Only? Whoever can निभाव this. Okay. You can't just. But even if that you have to give, then you have to give in the childhood, right? Why in the before marriage? मतलब दो संस्कार को मिक्स कर दिया गया यहाँ पे, जबकि ये संस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि बालक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके 25 साल जो जीवन के पहले होते हैं डिसिप्लिन, सेलिबसी और अच्छा बने, सेंस कंट्रोल बने, एंड देन ही कैन लेटर मैरी आफ्टर 25 years। हाँ, वेदों का पढ़ाई करे, शास्त्रों का श्रवण करे, उसको शादी के पहले बना देते हैं। So this is the age of Kali. So that's why we are not more concerned about the sacred thread, but we are more concerned about chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hope all of you are chanting in the home. You are all chanting? One round each? 2, 3, 4, how many rounds? Yeah. I told you last time, half an hour, I don't know. Half an hour, okay, good. Half an hour means at least 8 to 10 rounds. But keep counting. No, the beads are there. But you don't have the counter. The beads, I just look at the time and I say, wow. We have our satsang bead. Oh, Nityanand Charan too. नहीं राधा रानी प्रिया माता जी के साथ Okay. रोज जाप करते Zoom पे? या Zoom पर। Okay. She logs in 5 o'clock, तो हम लोग we try to finish 16. मतलब we try. I don't work 5 o'clock. I love it. She That's gets- okay. But she comes. Try to do it on the counter. Counter आता है, मालूम है ना आपको counter रहता है. I'll get you to come. So you will get to know how many rounds you are chanting. Okay. Hare Krishna. Don't get scared. This is care, Yes. not scare. We don't want you to get scared, right? So यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी का जब उपनयन भी नहीं हुआ था, जो कि जनरली व्यासदेव कौन थे? व्यासदेव ब्राह्मण थे, उनके पुत्र ब्राह्मण होने चाहिए और जन्म लेते ही उनको क्या करना है? उपनयन देना है। बट बिना उपनयन संस्कार के वो क्या कर दिए? जन्म लेते ही घर से निकल गए। और यहाँ पे कहते हैं कि व्यासदेव इज एक्चुअली शाउटिंग। व्हाट इज शाउटिंग? द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह कातर मीन्स वियोग से। अगर आपका बच्चा अगर जन्म लिया है, कितना प्रेम होता है बच्चे से अपने को, नहीं? We don't want to, at least जब तक थोड़ा बड़ा नहीं होता हम उससे सेपरेट नहीं होना चाहते, एटलीस्ट 5 साल का। सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए, अद्भुत थे वो। अपनी माँ के गर्भ में कितना रहे वो? 16 years, 16 साल। 16 साल। You didn't know? There are many stories of Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami actually, Lord Shiva and Parvati one time they are doing katha in the Kailash. Parvati is hearing katha. Shivji is narrating glories of Lord Krishna from Bhagavatam.
एंड कथा सुनते सुनते सो गई पार्वती जी झपकी लग गया उनको। लेकिन शिव जी तो अपना आंख बंद करके बोल रहे थे, ही वॉज इन ट्रांस, ही वॉज स्पीकिंग भागवतम, बीच बीच में बोल रहे थे। ठीक है, ऐसा होता है। तो आप कैसे कहते हैं? या तो आप मुंडी हिलाते हैं या आप कहते हैं हाँ हाँ। सो दैट्स इंडिकेशन कि सुन रहे लोग। अगर गर्दन नहीं हिली, आवाज भी नहीं आया, मतलब क्या हो गया? हिप्नोटाइज्ड। सो अभी पार्वती सो गई थी लेकिन आवाज आ रहा था हाँ हाँ। एक्चुअली एक तोता बैठा था, वो तोता सुन रहा था भागवतम। और भागवतम जब तोता सुन रहा है और भागवतम सुन के उसने पूरा कर दिया, तो कथा पूरी होने के बाद पार्वती की नींद खुलती है। शिव जी को पता चलता है कि ये तो सो गई थी, फिर आवाज कहाँ से आ रहा था हाँ हाँ करके। पता चला वो तोता सुन रहा था। शिव जी बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि अरे ये तोता कैसे सुन लिया, इज नॉट क्वालिफाइड टू हियर। भागवतम सुनने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन लगता है। तो आप बोलेंगे आज तो बहुत सारे मार्केट में भागवत सप्ताह हो रहे हैं। मैं उन भागवत सप्ताहों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्योर भागवतम सुनने के लिए बहुत भाग्य लगता है। प्योर इन द सेंस बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी आदान प्रदान के, मॉनिटरी। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया आपको, ना ही आपने मुझे कहा कि आप सुनाइए तो आपको इतना देंगे। भले देंगे तो मना नहीं करूंगा मैं। we use in the service of the Lord, but we don't have that condition, right? Neither we have any other condition कि आपको इतने ही क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके आना है, राइट? although that is recommended। तो प्योर भागवतम बहुत रेयर है एक्चुअली देखा जाए तो। मैं तो मार्केट में तो बहुत सारे भागवतम कथाएं चल रही हैं, बट कितने परंपरा में आते हैं डिसिप्लिन सक्सेशन में और कितने प्योर हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर भागवतम। सो शिव जी थोड़ा गुस्सा हो गए, तोता वहां से भाग गया और सीधा सुखदेव व्यासदेव की पत्नी उनके मुख से प्रवेश करके उनके गर्भ में चला गया। सो वासुदेव इज नॉट, सुखदेव गोस्वामी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। और उनके गर्भ में 16 साल रहा व्यासदेव इस डर से कि अगर मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। I don't want to get out from this। भले गर्भ के अंदर तकलीफ हो चलेगा, ये तकलीफ मुझे मंजूर है, लेकिन बाहर जाऊंगा तो तुरंत प्रकृति के 3 गुण सत्व रजतम और मोहित करने वाली माया ये मुझे हर लेगी। निकल ही नहीं रहते बाहर। तो एक्चुअली व्यासदेव श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण विजिट्स व्यासदेव एंड सुखदेव को, उनकी वाइफ को, एंड लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ एश्योर्स सुखदेव गोस्वामी कि अरे बाहर निकलो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जब सुखदेव गोस्वामी को इस तरह से आश्वासन मिलता है साक्षात भगवान कृष्ण से, तब सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं। और वो भी जन्म लेते ही, जैसे इस श्लोक में डिस्क्राइब किया गया है, ही इमीडिएटली लीव्स द होम। क्यों? ये तो उनका बहुत बड़ा ग्रेटनेस है। नाउ द क्वेश्चन क्यों, यहाँ पे कहा गया है कि जो घर से बाहर निकले तो व्यासदेव उनके वियोग में कह रहे हैं, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और उनको रिप्लाई कुछ नहीं मिल रहा है। भागवतम में लिखा गया है, आगे आएगा, रिप्लाई केवल वो कहते हैं ना आप, साउंड कभी कभी अगर क्लोज रूम रहेगा तो दीवार को टकरा के वापस आता है। उधर भी ऐसे हो रहा था, जो भी साउंड व्यासदेव कह रहे थे, हे पुत्र वापस आओ, तो जितने भी पेड़ पौधे थे उनको टकरा के वापस आवाज आ रही थी, हे पुत्र वापस आओ। ऐसा कहते हैं मानो जैसे पेड़ उनको चिढ़ा रहे हो। व्यासदेव को गया नहीं आएगा अभी वापस। बेटा ऐसा है कि जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, राइट? तो अभी कोई बोलेगा कि एंड सुखदेव गोस्वामी डिडंट रिप्लाई आल्सो, ही डिडंट लुक बैक कि पिताजी बुला रहे, देखा भी नहीं, सीधे चल दिया आगे। और चलते चलते जा रहे थे, यहाँ पे व्यासदेव पुकारते जा रहे हैं। तो अभी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, अगर आप समझे सड़क से जा रहे हैं और आपको किसी ने आवाज़ दिया, तो आप देखते हैं ना पीछे एक बार मुड़कर। और अगर वो अपना कोई घर वाला हो तो तुरंत आप देख के वापस जाके पूछेंगे क्या हेल्प चाहिए, क्या बात है, क्या नहीं है।
तो इधर तो पिताजी बुला रहे हैं, फिर भी इज नॉट लुकिंग बैक। इस तरह से जैसे मानो कान बहरे हो गए हैं और मेरा कोई घर परिवार नहीं है, मैं जानता नहीं इनको, कौन मेरे पीछे पड़ा है ये ऐसा मानो कौन है ये, मैं जा रहा हूँ आगे। तो कोई अगर एक सामान्य व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा कैसा पुत्र है यार, अपने पिता को इस तरह से त्याग के जा रहे हैं। पिता बोलते जा रहे हैं कि पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग लाइक दिस, प्लीज लुक बैक, दिस इज नॉट गुड। इवन नॉर्मल मॉरल एटिकेट में दिस बिहेवियर इज नॉट एज पर द नॉर्मल मॉरल स्टैंडर्ड्स, राइट। बट फिर भी सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यू सी दिस, हे पुत्र, उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। नोबडी रिप्लाइड। सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन इज दिस ऑफ सुखदेव गोस्वामी? क्या ग्लोरिफिकेशन है ये? सी, जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, श्रीमद् भागवतम इज द परमहंस संहिता। इट इज बियॉन्ड ऑल ऑर्डिनरी कोड्स ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजन, धर्मार्थ काम मोक्ष, इसके परे है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे उनके ग्लोरिफिकेशन में। नंबर वन, सुखदेव गोस्वामी इतने एडवांस है, जन्म से ही इतने शुद्ध भक्त हैं कि उन्हें ये सब नॉर्मल ऑर्डिनरी जो उपनयन संस्कार है इसकी जरूरत नहीं है। अरे गेटिंग मी? सब लोग मेरे साथ में हैं? समझ रहे हैं? सुखदेव, जनरली हमको इस दुनिया में पवित्र होने के लिए सब संस्कार कराए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पहले अपवित्र हैं। अगर हम अपवित्र नहीं है तो फिर ऐसा संस्कार की क्या जरूरत है, राइट। सुखदेव गोस्वामी का वो केस है कि वो पहले से ही इतने शुद्ध है कि उनको ऐसा उपनयन विपनयन की जरूरत नहीं है। इज बियॉन्ड ऑल दैट। सेकेंडली, व्हेन फादर इज कॉलिंग, ही इज नॉट लुकिंग बैक, पीछे देखे नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि ही इज सो रिनाउंस्ड, इतने इस जगत से अनासक्त हैं कि he can do that, we cannot do that. Tomorrow you don't imitate सुखदेव गोस्वामी आप लोग इमिटेट मत कीजिए और मैं भी इमिटेट नहीं करूंगा। We can't imitate him. कल को अगर आप बोलेंगे मैं भी सुखदेव गोस्वामी से विरक्त होना चाहता हूँ, not possible. For him it is possible because he is already purified soul. So he is not responding to father's call, that indicates कि he is so renounced, उसको कुछ भी आसक्ति नहीं है। एक्चुअली हम लोग पीछे क्यों देखते? क्योंकि हमको आसक्ति है ना, हमको डर रहता है, अरे शायद मैंने अगर उस कॉल को रिस्पॉन्ड, अगर तो फोन आता है आपको, मिस कॉल आता है तो आप कॉल बैक करते हैं ना, डर रहता है कहीं अगर, अरे आजकल एक व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, लोग क्यों रिप्लाई नहीं दिया मेरा। और आजकल तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्हाट्सएप में वो क्या करते हैं, ब्लू टिक को दिखता ही नहीं, ब्लू हुआ कि वाइट हुआ, क्या हुआ। ऐसे लोगों से इतना गुस्सा आता है क्योंकि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैसेज देखता है कि नहीं देखता है, नहीं देखता है ऐसा तो होता ही नहीं है, एवरीबडी नोज दैट, बट दे सी किसी का सेटिंग रहेगा तो मुझे कुछ ये नहीं है यू ऑल हैव योर सेटिंग्स इन द व्हाट्सएप, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट एक मैसेज का रिप्लाई अगर थोड़ा टाइम लग गया देने के लिए, लोग चिड़चिड़ करते हैं, क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्या समझता है अपने आप को, मेरे कुछ समय की वैल्यू नहीं है क्या। हालांकि मैं भी थोड़ा डिले करता हूँ, बट आई हैव माई ओन रीजंस बट अभी ये सब क्यों होता है? क्योंकि डर है ना संसार में कि अगर मैंने ठीक से उसको रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो हो सकता है कल मुझे कुछ काम होगा तो वो मेरे काम में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी भी संसार में रहना चाहते हैं, यू नो, हमें डर है संसार में कि अगर मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा तो वो भी कल मुझे हेल्प नहीं करेगा, तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू हेल्प और यू नो इधर रिस्पॉन्ड और डू समथिंग। आई कैन नॉट एक्ट ट्रांसेंडेंटली क्योंकि मैं अभी क्या हूँ, इस जगत में बाउंड हूँ। सुखदेव गोस्वामी को कौन सा डर है? भले पिताजी का कॉल ले या ना ले, वो जान, और सुखदेव गोस्वामी ये भी जानते हैं कि मेरे पिताजी परम भागवत, महान भागवत है। ये लीला हो रही है यहाँ पे। इट्स नॉट दैट व्यासदेव इज अटैच्ड, बट व्यासदेव इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अटैच्ड पर्सन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कितने ग्लोरियस है बताने के लिए रोल निभा रहे हो, राइट।
Are you all right? I get mixed up with Shukdev Goswami and Sut Goswami, and it comes, you know. Why? Sutta Goswami is a disciple of Sukdev Goswami. And Sukdev Goswami is the one who spoke Bhagavatam to Parikshit Maharaj. Sutta Goswami later on, after many years, in the forest of Naimisharanya, spoke that same Bhagavatam which Sukdev Goswami spoke to Parikshit Maharaj. He narrated the entire discussion between them to sages of Naimisharanya. Sages of Naimisharanya. Sut Goswami. Yeah. Sut Goswami tells the sages of Yes. Are you okay now? I forget very fast. So we are discussing the glories of Sukdev Goswami right now. What is the time now? 5:23. We have मैं time. सारण का नाम लिया तो याद आ गई, बचपन हमारा उधर ही मायका नैमिषारण्य. मैं सारण के पास में अच्छा. गई हूँ बचपन से, आपने किया तो याद आ गया. You are also sage of Naimisharanya. You all are sages of Naimisharanya. वो तो है, Yes. प्रत्यक्ष ऐसे देखा है. Yeah. याद है. Yes. So this is the thing. सुखदेव गोस्वामी इतने डिटैच्ड हैं इस संसार से, and that makes him qualified to speak Bhagavatam. We are all not qualified, but we are actually trying to assist Srila Prabhupada and Sukdev Goswami to spread them message of Bhagavatam. Right? So this has to be the mood of the speaker, because nobody can be so much qualified like Sukdev Goswami. We are just following in his footsteps. इसलिए देखिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जब आगे जाके बोलेंगे कि तथाकथित सांसारिक सुख के पीछे मत भागो, इससे डिटैच हो जाओ. सुखदेव गोस्वामी पहले अपने एग्जाम्पल से बता दे कि मैं डिटैच हूँ, देन आई कैन स्पीक बी डिटैच्ड. राइट? जिसने स्मोकिंग छोड़ा वही बोल सकता है स्मोकिंग छोड़ दो. एंड ऑल्दो वन मे टेल कि छोड़ दो अच्छा नहीं है, बट दैट दोज वर्ड्स विल नॉट बी इफेक्टिव. पावर नहीं रहेगा उसमें. पावर देना है तो पहले अपने को फॉलो करना पड़ेगा. राइट? सो दिस इज द ग्लोरीज ऑफ सुखदेव गोस्वामी. और यहाँ पे प्रभुपाद भी तात्पर्य में वही चीज लिखते हैं. राइट? प्रभुपाद कहते हैं इन द लास्ट पैराग्राफ, श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी. यू रीड द सेकंड पैराग्राफ, आप पढ़ लीजिएगा बाद में. सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, वी आर ऑल इग्नोरेंट. उसके बाद हमको द्विज बना, पहला जन्म हमारा माता से होता है, दूसरा जन्म हमारा दीक्षा गुरु से होता है, तब हम बनते हैं द्विज. राइट? प्रभुपाद ने उसको वहाँ पे लिखा हुआ है. द्विज बनने के बाद वेदों का अध्ययन करके हम विप्र बनते हैं. विप्र यानी कि एक्सपर्ट ब्राह्मण. एक्सपर्ट ब्राह्मण बनने के बाद फिर और एक आगे स्टेज रहता है वैष्णव. She wants to know what is that second. द्विज मतलब दो, ट्वाइस बॉर्न. फर्स्ट बॉर्न इज फ्रॉम अवर बायोलॉजिकल मदर फादर, सेकंड इज फ्रॉम अवर स्पिरिचुअल फादर और मदर, whoever. राधा रानी माता जी इज योर स्पिरिचुअल मदर. सेकंड बर्थ. देन आफ्टर बिकमिंग द्विज there is a stage called Vipra when you study Vedic literatures. मतलब you become learned in the scriptures, whatever to the extent you can learn. उसके बाद एक आगे स्टेज होता है वैष्णव. वैष्णव मतलब ब्राह्मण से भी आगे. भगवान के 3 स्तर है ना, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति. आपने सुना होगा गीता में. ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर और भगवान स्तर. ये 3 स्तर है भगवान के. राइट? तो हमें जब ब्राह्मण बनते हैं तो हम ब्रह्म स्तर पे हैं, लेकिन उसके आगे परमात्मा स्तर होता है, उसके आगे भगवान स्तर होता है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, या फिर अयोध्या में राम है, द्वारका में द्वारकाधीश है, ये सब, या वैकुंठ में अनेक अनेक चतुर्भुज भगवान के रूप में. दीज आर ऑल भगवान स्टेजेस. राइट? तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया गया है. जबरदस्त ग्लोरिफिकेशन है. ऐसा ग्लोरिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको ना. सुखदेव गोस्वामी क्योंकि डिग्री बताई जा रही है. कौन सा डिग्री लिया उन्होंने, कौन सी पाठशाला में पढ़े हो? नो पाठशाला, नो डिग्री. ऑफ कोर्स ही विल लेटर स्टडी भागवतम फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से पढ़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ इज कंप्लीटली रिनाउंस, डिटैच, नॉट बॉदरिंग एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड.
दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, फियरलेस, ऐसे व्यक्ति से भागवतम हमें सुनना चाहिए। या फिर ऐसे परंपरा में जो लोग फॉलो करते हैं, यू नो, आचार्यस, उनसे भागवतम सुनेंगे। सच भागवतम इज रेयर। ऐसा भागवतम क्या है? दुर्लभ है। बाकी तो भागवतम कहीं से आप गीता प्रेस में तो कितना प्रिंट होता है, इस्कॉन से बहुत प्रिंट हुआ है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद भागवतम इज स्पेशल बिकॉज प्रभुपाद कमेंट्री इज देयर। ऑफ कोर्स ये भी ऑथोराइज्ड है। माय पॉइंट टू से इज कि हु इज नरेटिंग भागवतम, कौन भागवत को पढ़ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कितना रिसीव कर पाएंगे, राइट? बिकॉज ये कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है कि A + B + C = ABC हो गया। इट्स नॉट लिमिटेड टू इंटेलेक्ट, इट हैज टू गो बियॉन्ड इंटेलेक्ट, माइंड, रीच टू द सोल। आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा। इसलिए प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स इंडिया में जब आए थे तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते थे प्रभुपाद के डिसाइपल्स को कि आपके शिष्य लोग संस्कृत ठीक से पढ़ना नहीं जानते, दे डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस द संस्कृत वर्सेस। प्रभुपाद सेड नो प्रॉब्लम, देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड बट देयर रिनंसिएशन इज वेरी गुड। व्हाट इज द रिनंसिएशन? हु इज गोइंग टू फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स? नो मेडिटेटिंग, नो इल्सिट, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। कितने लोग चाय तंबाकू पीते हैं संसार में? भारत में तो सबसे नंबर 1 है। चाय के बगैर लोग, अब कोई पीता होगा तो कोई, डोंट टेक एनी ऑफेंस, राइट? बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप, राइट? और वो लोगों ने छोड़ दिया। उनके तो बचपन से ही उनको मांस खिलाया जाता है, बचपन से ही शराब पिलाया जाता है, और वो लोग छोड़ सकते हैं। मतलब दैट्स द पावर ऑफ आचार्य। दैट्स व्हाई प्रोनाउंसिएशन आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है, डोंट वरी। उसका मीनिंग अगर हमारे जीवन में उतर गया है, रिनंसिएशन, देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। अदरवाइज जस्ट बाय प्रोनाउंसिंग और रीडिंग भगवद गीता इन परफेक्ट मीटर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मे एलिवेट यू टू सम एक्सटेंट, पायटी मिलेगा, पुण्य मिलेगा। पुण्य मिला के कहाँ जाओगे? स्वर्ग तक जाओगे। इस ब्रह्मांड के बाहर तो नहीं जा सकते हो, उसके लिए अलग वीज़ा लगता है। दैट इज लव ऑफ गॉड। भगवत प्रेम चाहिए उसके लिए, इस ब्रह्मांड के बाहर जाने के लिए। दैट वीज़ा यू नीड, राइट? और 16 माला कौन करेगा? यू नो, 16 राउंड्स मतलब कितने? 2 घंटे रोज, 2.5 घंटे प्रायोरिटी देकर। कौन करेगा? जिसके जीवन में वैराग्य वही करेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आएगा। एज यू गो ऑन रीडिंग भागवतम, यू हैव टू कमिट योर सेल्फ टू चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And that will be the success of your Wednesday program. अगर वो नहीं हुआ तो I will consider it. We'll get the mala next time. Yes. माला तो मैं ही लेके आने वाला हूँ. Who wants mala, Prabhu? You can take the polling in the group. We'll take. Yes. Put thumbs up on the group so we'll come. हम सब क्यों polling डाल दीजिए ना. Yeah. ठीक है, I'll do that. हाँ. It's like what you want to do. Yes. No, no. Full chanting bag. आप सबको जब करना है, सब कुछ काउंटर, टेली काउंटर, ठीक है, टेली काउंटर भी मिलता है, वो भी लेके आएंगे, नो प्रॉब्लम। टेली काउंटर इज देयर। हम तो ये कुछ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, गायत्री उंगली पे करना होता है, बट महामंत्र, मंत्रों का महामंत्र है ना, कृष्ण गीता में कहे है ना। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Written over there. Behind me? अच्छा, here. Okay, yeah, महामंत्र, yeah. This is the purpose of that card. That you should chant. तो आपका वेडनेसडे प्रोग्राम सक्सेसफुल है। नहीं तो क्या है, आप लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा कथा सुनेंगे, इट कैन बी लाइक a spiritual entertainment. You will go away. But where is the practical application of this? Practically apply करना चाहिए ना? But we're not applying. But you are chanting ना? But still I didn't follow the principle. चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिगिन विथ चैंटिंग, एवरीथिंग बिगिन्स विथ द चैंटिंग। व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग देन ऑटोमेटिक, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी वर्सेस आएंगे, वो दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। सी, इसलिए मुझे कोई कुछ उम्मीद नहीं है किसी से, सिर्फ एक ही उम्मीद है अपने से भी कि हम चैंटिंग स्टार्ट करें, अच्छा बनाएं, दैट्स इट।
When you start chanting, it will take care of everything. Because chanting is non different than Bhagavatam, non different than Sri Krishna himself. So, yes. There's something about you. There's a magnetism about you which What? attracts me every week. Behind me is Radha Gopinath. They are attracting you. Attracted by you. I am just a via medium, nothing else. यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बैठे हैं, वहाँ श्रीनाथ जी पधारे हैं और इतने सारे डिवोटीज हैं. They are attracting you. Even I am also attracted by them. They are all magnets, right? So many magnets. प्रहलाद महाराज कहते हैं actually ये that I am attracted to Krishna, Vishnu, like iron particles. They are attracted to magnet. My attraction is so natural, right? That's what Prahlad Maharaj says. So you are attracted, right? So this is first, a beautiful glorification. और ये जो सीन है ना यहाँ पे, देखिए भागवतम इतना जबरदस्त है कि एक श्लोक हम 1 घंटा डिस्कस कर सकते हैं. Which ideally we try to avoid because you want to cover it, but try to understand. We just don't want to run so much, so fast without grasping the meaning. One sentence or one Prabhupada's purport line, if it can make sense to you, it will change our life. You don't have to, be like वो क्या रहता है उसको. एक बार एक स्टोरी था, एक आदमी को बोला कि आप भागो, जितना कवर करोगे उतना आपको लैंड मिलेगा. सुबह तो भागता गया. He supposed to stop somewhere and return back also, ना. He kept running. लालच इतना है. Of course, this is spiritual greed. We want to cover. He kept running. अब रिटर्न होना था, शाम होने को आई, सोचा चलो रिटर्न हो लेता हूँ. लेकिन इतना दौड़ लिया था वो, और रिटर्न भी दौड़ना ही है ना. हार्ट अटैक आ गया बेचारे को. रिटर्न आने का सवाल भी नहीं है. जो कवर किया था वो तो ठीक से कवर भी नहीं हुआ, आके रिटर्न लेना क्या, खत्म. See, this is the life of a person in the current age. Running so fast, running. We want to get this, that. अरे जो लिया है कम से उसको तो ठीक से एंजॉय करो. देखा हम लोग कैसे खाना खाते हैं ऑफिस में. इवन आई वाज थिंकिंग कि अरे ये तो खाली बाहर जो ठेला वेला रहता है वहीं पे ऐसा करते होंगे लोग. Even I have seen in the big offices. One time I was in one program. वहाँ पे मतलब रेगुलर जाता रहता हूँ. धीरे धीरे उनका आदत चेंज कर दिया. अभी उनको बोला कि चलो प्रसाद लेना है, तो बोला ठीक है प्रसाद लेना है. सबको डिश वगैरह दिया, सब अपना ले रहे थे. लोग खड़े खा रहे हैं. मैं तो नीचे बैठने वाला था, वो जबरदस्ती चेयर पे बिठा दिया. मैं बोला नीचे अच्छा लगता है. देख रहा हूँ सब लोग खड़े खा रहे हैं. मैं बोला ये क्या है. पंछी देखा आपने कभी? पंछी खड़े सोता है. You have seen birds? तो मैं बोला ये कौन सा कल्चर है यार, ये लोग खड़े क्यों खा रहे हैं. अभी ऑफिस में जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, संध्या का टाइम है, ऑफिस से आए हैं, बैठ के खाओ यार. बट दे आर सो हैबिचुएटेड, दे कांट सिट डाउन ऑल्सो. खड़े खा रहे हैं. आई वाज सरप्राइज. मैं बोला ये क्या है. देन मैंने बोला बैठ जाओ शांति से, आराम से बैठो, आराम से खाओ. लाइफ इतना पैशनेट हो गया है कि पीपल हैव फॉरगॉटन, ठीक से एंजॉय करना भी भूल गए, इवन मटेरियल लाइफ. दैट्स व्हाट सुखदेव गोस्वामी इज टीचिंग अस कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ. सो दैट्स व्हाई दिस इज यूनिक ग्लोरिफिकेशन. और जो कैमरा घुमा है वहाँ पे सुतो गोस्वामी कैमरा लेके गए हैं. एक पिक्चर, जस्ट बाय वन इमेज अ बिग ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी इज डन. क्या पिक्चर है. सुखदेव गोस्वामी घर से बाहर जा रहे हैं, व्यासदेव बुला रहे हैं, हे पुत्र. दैट्स इट. दिस इज द पिक्चर. एक पिक्चर सफिशिएंट है आपको पूरा इसेंस बताने के लिए पूरे शास्त्र का. अगर वो उस पिक्चर को एक परंपरा में आचार्य एक्सप्लेन करते हैं तो. अदरवाइज बाहर के लोग क्या करते हैं, ये सब क्या सुखदेव गोस्वामी की कथा पढ़नी है हमको, तो हमको डायरेक्ट रासलीला देखनी है, हमको 10th कैंटो दांडिया खेलो. ऐसे थोड़ी दांडिया खेला जाता है यार. फिर उसके रिपरकशन दूसरे दिन में पता चलते हैं. सो दिस इज सो हॉरिबल इन द आउटसाइड वर्ल्ड. पीपल डोंट वांट टू स्टडी भागवतम के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th नहीं पढ़ना चाहते लोग. कितने भी भागवत सप्ताह होते हैं, क्या करते हैं वो लोग वहाँ पे.
अरे रास रचाओ रे, गाने भी ऐसे ही है, नाचो रे, एंजॉय करो। दे वांट टू इमिटेट गॉड। तो लोग गोपी बनना चाहते हैं, और जो एक भजन है ना, दिल तुमसे लगा हरे रामा, रामा ऐसे नगर को जाइए जहाँ मुकुट मिले हरे रामा, मुकुट भी ऐसा चाहिए जो सिर पे चढ़े। तो ऐसा ही डांस करते हैं ना डांस। हमको उस नगर में नहीं जाना है। नहीं, नगर से मुकुट लाना है ना, अच्छा, ऐसा मुकुट चाहिए जो सिर पे सजे। किसके? अरे सिर बंसी भी ऐसी चाहिए हो तो, राधे भी ऐसी चाहिए जो कान्हा संग सजे, वो है। So this is the problem. हाँ? यही समस्या है ना। काहे की? भाई हो सकेगा तो मैं उसको कर सकती हूँ। दृष्टांत देना चाहते नहीं, आपके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं है। अरे राधा, हाँ, यस, आप का ही कर यू आर क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ योर एज। नहीं क्वालिफाई नहीं, लेकिन जो कृष्ण स्वामी राधा कृष्ण की बात होती है ना। Yes, yes, yes. My whole point is to say that without trying to, relish God, try to understand who is God. Otherwise, eventually आप बोलेंगे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राधे हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। लोग ऐसे ही करते हैं ना। जो एंजॉइंग मेंटेलिटी है वो हमारे अंदर पहले भर भर के है, और जब हम भगवान के ऐसे इंटीमेट पास टाइम्स पढ़ते हैं डायरेक्टली, तो इट में हैव एडवर्स इफेक्ट। Instead of decreasing our lust, it will increase or entice. So Prabhupada ने इसलिए warning दिया है, don't try to go to Bhagavatam 10th canto without first studying 9 cantos and beginning with Bhagavad Gita for 8 years. Then you are qualified. Then you can relish even one verse of the first canto of Bhagavatam. You will relish and enjoy so much. अरे चैतन्य महाप्रभु जब तोता गोपीनाथ मंदिर में थे जगन्नाथपुरी में, क्या करते थे वो? विद गदाधर पंडित। हुई गदाधर पंडित? इनकारनेशन ऑफ राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या है? कृष्ण है। सबको मालूम है ना चैतन्य महाप्रभु? माता जी ने तो पढ़ाया होगा ना। चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों मिलके तोता गोपीनाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में है, वहाँ भागवतम पढ़ते थे। प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा है। Not one time, 2 time, hundreds of time. When they are themselves Krishna and Radha. They themselves not going to 10th canto to discuss Ras Leela. They are discussing what? Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj का devotion क्या है? Because that is needed for us. How to become devotee. Ras Leela में कैसे पता चलेगा आपको how to become devotee? Ras Leela is after you become devotee. बराबर ना? भक्त बनने के बाद रास लीला होती है। डायरेक्टली रासलीला खेलने जाएंगे तो भगवान को डिस्टर्ब कर देंगे। किसी गोपी को उठा के भाग जाएगा कोई, बोलेगा यार ये गोपी बहुत। सी दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द सो कॉल्ड भागवत रीडर्स। ऐसा भागवतम को रिलीज नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। सुध गोस्वामी क्या कर रहे हैं? कैमरा लगा दिए, एक पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि कौन है ये। इसलिए आप देखेंगे जैसे किसी को अगर आपको ग्लोरीफाई करना होगा, व्हाट यू से? यू से कि जैसे कोई अगर आपको कहना है कि यह व्यक्ति इतना महान है, इतना इतना उसने किया है, ये सब कहने के बजाय अगर आप बोल देंगे उसको ना नोबेल अवार्ड मिला है, एक नोबेल अवार्ड सब बता देता है आपके बारे में, कितना महान है ये व्यक्ति। जरूरत नहीं है बाकी सब तथा ग्लोरिफिकेशन कि कौन से कॉलेज से पढ़ा है, HSC में कितने मार्क्स लेके आया, डिग्री में कितने लाया। नहीं, नोबेल अवार्ड मिला है भाई, खत्म। उस तरह से सुखदेव गोस्वामी क्या है यहाँ पे? is so renounced, so detached, that is sufficient, this one picture, to glorify him. He is so elevated soul, such a great Mahatma. Right? So like that, shlok number 2, right? It glorifies Sukhdev Goswami. Anybody has any questions till now? A little digression chalega, but regarding what we are talking about, Prabhuji, there is on Tata Sky, on Tata Play, there is a channel 1089 which shows only ISKCON and Krishna Bhagwan. Throughout the day, throughout the night, it goes on. So I switch it on quite often. And excuse me.
in the temple, in the Islam temples, I see a lot of people dancing, but not gracefully. I think they're just jumping. So, what is that? Why are they doing that? They are not dancing. They're just jumping. They're just jumping. You know, there is no grace, there is no dance or anything. Okay. They're just jumping. So, what is it? Why are they doing that? They are So- connected to God. So do you want to jump or? I'd rather dance than jump. I don't know. But why are they jumping? Yeah. Why are they just jumping? Yeah, I सब लोग ऐसे jump करते हैं. No action, nothing, ऐसे ही jump करते हैं. Especially the men. So I was wondering. Especially those brahmacharis, right? Yeah, the men. Not, I don't know, whoever comes over there, you know, I don't know who are the brahmacharis and ordinary people also who come to the temple. They are all just jumping. Is it jumping for joy or something? Actually, we also jump. Yeah, but what is See, there are different stages of kirtan. In the beginning, kirtan is, as you say, graceful. It goes slowly, First slow. Just like we don't start immediately fast. We go slow, then little fast. Then as the speed of the kirtan increases, the speed of the dance also goes on increasing. And when it reaches the, yes, then you can't control yourself. You kind of Hari Bol. you're ecstatic. Yes, ecstatic. You got it. Got it. Yes. Hari Bol. Hari Bol. He is now ecstatic. Yes. So there is no problem in dancing, provided we don't hurt each other. Okay. We have to be careful in that. So like this. So this is the glorification of Sukadeva Goswami. Then तीसरे श्लोक में कहते हैं कि क्यों फिर सुखदेव गोस्वामी ने, अगर इतने रिनाउंस थे, घर छोड़ के चले गए, घर वापस आकर पिताजी से भागवतम सुना उन्होंने, उनका बायोग्राफी अभी और धीरे धीरे डिटेल में आएगा. एंड ही स्पोक दिस भागवतम टू whom? परीक्षित महाराज, या इवेंचुअली प्रहलाद महाराज, थ्रू नारद मुनि. परंपरा में आते हैं सब. नारद मुनि ऑफ कोर्स इज अ गुरु ऑफ ऑल दिस. तो ऐसा क्यों उन्होंने किया? तो उसके लिए श्लोक दिया यहाँ पे, यस्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपम तितिष्ठाम तमो अंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयामि गुरुम मुनीनाम. कहते हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया. तो किस लिए सुनाया उन्होंने भागवतम? संसारिणाम करुणया. ये जो हम जैसे संसार के लोग फंसे हुए हैं, उनके प्रति करुणा करते हुए. सुखदेव गोस्वामी को जरूरत नहीं थी वापस राजा परीक्षित के पास आकर भागवतम बोलने की. क्यों? क्योंकि वो तो अपने भक्ति में मस्त थे, जंप कर रहे थे. He was ecstatic. He didn't need it, but he came back. Learned. Actually कहा जाता है कि, of course that will come later, will describe later. He spoke this भागवतम कितने दिन? 7 दिन के लिए बोला. 7 दिन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है. हमारे भागवत सप्ताह जैसा नहीं होता है वो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम. Not like that. Whole day and night without eating, sleeping. मैं तो कहता हूँ कि भागवत सप्ताह जो करते हैं, अगर इमिटेट करना है तो इस तरह से करो. Don't eat, don't sleep. 7 days, 7 nights. Not possible, ना? So this is a cheap imitation actually देखा जाए तो. So not bad, good. भागवत सप्ताह are good, but the trend should be नित्यम भागवत से हुए. हमको भागवतम रोज पढ़ना है, 7 दिन नहीं केवल. राइट. तो सुखदेव गोस्वामी ने इतना करुणा करते हुए हम जैसे लोगों के लिए क्या किया? इस गुह्य पुराण को, जो कि वेदों का सारा सार है, वैदिक शास्त्र का, उसको कह के सुनाया परीक्षित महाराज को. राइट. प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है. राइट. किसी को डाउट है कि हम संसार में सुखी हो सकते हैं?
विश्वास है इसके ऊपर? We can't be happy. अभी आप लोगों से ज़्यादा रियलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस कोई नहीं हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हु इज सेइंग? आप बोल रहे हैं। दिस इज कंक्लूजन बाय whom? ऑल ऑफ यू, मीन्स हेंस प्रूव्ड। तो कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं, संसार में तो बहुत सुख है। लोग ऐसा कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं कहाँ कह रहा हूँ, अभी ऑडियंस में से कुछ लोग प्रूव करके दिखाएंगे मुझे कि सुख कैसे नहीं है, देन इट इज प्रूव्ड। Yeah, it's not permanent. Because if there is such, there is such also, and it's all temporary there. मतलब टेम्पररी भी सुख है करके मान रहे हैं। Prabhuji said there is no sukh. There is sukh also. ना? Yeah. Prabhuji ये सुनना भी सुख है ना? That there is हाँ, God and this is God. different. हाँ, सुख है, yeah. लेकिन अपने को भगवान की जब प्राप्ति हो Yes. तभी असली सुख Yes, तभी yes, मिलेगा। yes. No, this is bliss. I am not talking about Bhagavatam. I am talking about all our worldly activities. Yeah. This is a spiritual bliss. Yes. So I have two questions. When you say we all know कि संसार में सुख नहीं है, व्यास जी जैसे इतने महान, उनको भी बेटे का मोह हो जाता है। And he is falling so joy. I gave you that answer already. No, I'm just trying to understand for myself कि जब वो इतने renounced और इतने Elevated. उनको वो है, तो हम तो कहीं आते ही Yeah, नहीं हैं, yes. मतलब। Through this pastime he is indicating. So obviously this is लीला for us only कि हमको ये otherwise वो आगे कैसे चलेगी कहानी अगर वो नहीं करेंगे तो उसको बताने के लिए। Yes. लेकिन at that level also Yes. they have to pay that, उनको भी माया लग सकती है, पुत्र मोह हो सकता है। तो Sorry? Quite a lot of dukkh also comes from attachment. Yeah, dukkha comes from attachment only. Yes. Yeah, but attachment to what extent? With our children, especially our children, you know, like I'm thinking all the time about what my daughter is doing. Has she eaten? Has she not eaten? So it's like, it's not, we are always apprehensive. You know, I hope everything is okay and this is that. So वो थोड़ा दुख तो है। बताइए ना। संसार ऐसे बनाया हुआ है कि आपको मैंने आई थिंक लास्ट टाइम बताया था आपको, प्रहलाद महाराज के पास टाइम में, गॉड विल समटाइम रिमूव योर प्रॉब्लम्स, देन एवरीथिंग इज सॉल्व्ड. Sometime he will not remove your problems, and through problems he will teach you. Yeah, Prabhupada has said, I read it in Classical Mind. Prabhupada has said, do it because it's difficult. Yes. I read that in the speaking tree. Yes. When it comes to service to Krishna especially, not that because it is difficult, then if you take easy path, you may get things, but they will also be cheap. तो हमको अगर सस्ता माल चाहिए तो इमिटेशन ज्वेलरी बहुत कुछ है, ज़्यादा लाइन उसके बाहर ही रहता है, इमिटेशन ज्वेलरी के बाहर, क्योंकि पैसा पे नहीं करना पड़ता ज़्यादा. ओरिजिनल गोल्ड चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस. प्योर भागवतम चाहिए, you have to pay the price of chanting Hare Krishna regularly. You have to pay the price of reading Bhagavatam in parampara, and not just get the spiritual entertainment. मजा आया, 7 दिन रासलीला हुआ, 7 दिन के बाद गायब सब लोग अपने अपने दुनिया में और भयंकर रासलीला. So we don't want that, right? So it is like that. हम आपसे क्या बताएं, हमको तो राधा कृष्ण जो है ऐसा लगता है हम यहाँ से उठे ही नहीं कभी, जो लग रहा है. देखिए आप नहीं उठ सकते, लेकिन इनको उठना पड़ेगा. नहीं, हम अपनी बात आ हाँ, रहे हैं, yes. ये तो पॉसिबल है क्या? आप तो एक्सटेसी में हैं, नहीं नहीं, and you are वानप्रस्थ. ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई कभी ना उठा. Hare Krishna. हरे कृष्ण. So today we stop here. I hope you are all okay. Yes. Sometimes some verses will have some discussion in depth, and then some verses we just cross it depending on what I have heard. ऐसा नहीं कि भागवतम के हर श्लोक में गहरा मीनिंग रहता है, but depending on how much I can understand based on my qualification and what I have heard, some verses will have in-depth discussion, some chapters will just fast cross. Okay, so today we learn about the special
qualification of Sukdev Goswami, who is the I think you preacher of got out Bhagavatam. from the mobile. Yeah, I think logged out because the class is over. It looks like. No, but this last message is the whole summary from your. Sorry. The last thing which you tell is the summary of the full class. Yeah. Actually. Right, बोलिया वही से मतलब Yes. So now we will have kirtan, and you take the polling in the group. I tell Keshika she'll do. Yes. No, you And, just keep it in and I will bring the beads online thing. and bag next time, Yes. and we can then try to chant actually one round in the group itself before we close. yes. For that you will have to come on time. I am trying my best to come on time. Today I was on time, right? Yes. Even last time you were on time. You're always Ah. on time. But they are taking a lot of time, 20 minutes to do one mala. But it's okay, Kishika. We will do in 8 minutes. You don't worry. All of us will chant together. 8 minutes में हो जाता है. I take 10 minutes. हाँ, मैं भी 10 मिनट्स लेता हूँ. थोड़ा सांत्वना देने के लिए 8 मिनट बोला मैंने. ओके. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. सुखदेव गोस्वामी जी की जय. So let us now have a kirtan, and then we will continue kirtan for the next 1 week in our respective homes. Hare Krishna. Okay, we in the temple they do one shloka. Yeah. एक ही करते हैं. Yes. Here we are doing at least 4 or 5. Lockout you have भागवतम के लिए No, I logged in. Yes. भागवतम के लिए जगन्नाथपुरी जा रही हूँ वहाँ पे सेकंड ऑफ जून को What's the program? भागवतम सप्ताह हो रहा है. 70 श्री राधा कृष्ण जी महाराज Please pray for all of us. सच में प्रशांत Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। See you next week. पूरा लेक्चर में पानी का हो जाएगा। Put a music आपको डालना चाहता है आपको देने आप डाल दीजिए। Be careful about the camera, it's on. The